Hi friends, as we have started the sums on error, now we are taking one numerical which is very complicated one, so I am solving this on the board. It's illustration 2.6 on page number 25. So pause the video, go through the illustration and then come back. Now in the illustration what you are given is, there is a standard clock which is showing 12 noon. There are two other atomic clocks present in a physical laboratory, National Physical Laboratory. Now these two clocks are to be compared with the standard clock. The observations in the clock, both the clocks, on different days. At standard 12 o'clock at the standard 12 o'clock. What observation comes in clock 1 on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Sunday, and here also 7 days a week. What observations are seen that are given? We have to find which of the two clocks are preferable. Now preferable means what? Which of the clock is more accurate? Okay, so out of the two, which is more accurate, we have to find out. Now accuracy का पता कैसे लगाएंगे? We can find accuracy only when we know the error. The clock which is having the least error will be more accurate. It's not the time which is important. You can adjust the second hand, the minute hand with the standard clock, but the more important is the inaccuracy. So we'll find error in both the cases. Both of the two, one of the two will be having the least error. We'll take out that least error wali clock, and that will be the preferable one. So अपना way of working, strategy of working क्या है? We have to find the error in both of them. The one which is having least error is more accurate. Okay, error calculate करने के लिए क्या करेंगे? तो here set of observations are given. Steps फिर से याद करें तो set of observation दिया तो सबसे पहले average find करने का observation का, तो इसका average ढूंढना पड़ेगा. उसके बाद we'll find the absolute error in each case, and then we'll take the average of that absolute error, and वो average absolute error दोनों का compare करना है. Now सबसे पहले clock 1 के लिए different timings are given on different days. हमने observation दिया हुआ है हमें, तो we'll total them. तो मैंने total निकाल के पहले से रख दिया. It's coming 82, 122, 142. अब कभी भी 142 सेकंड नहीं होते. We'll change it in the standard form. कभी भी 142 सेकंड घड़ी में नहीं होता. It's always 60 सेकंड. तो अगर 142 को देखें, 142 सेकंड, तो we can write it as 2 minute and 22 सेकंड. तुम बोलोगे वो कैसे रहा है? तो we know 60 सेकंड मेक अ मिनट. घड़ी की बात है, 60 सेकंड मेक्स अ मिनट. तो 120 सेकंड 2 मिनट हो गई, एंड 22 सेकंड बच हो गए एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे 22 सेकंड एंड ये 2 मिनट यहाँ पे ऐड हो गई, तो दैट मेक्स 124 मिनट. तो ये एक स्टेप हो गया, हमने पहले सेकंड को कन्वर्ट किया. अब चलते हैं मिनट के बारे में. अब मिनट भी 124 नहीं होती घड़ी में, तो 124 मिनट को क्या लिखेंगे? तो क्लियरली वी कैन से 2 आवर एंड 4 मिनट. क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स मेक 1 आवर. जैसे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड से मिनट में लिया, वैसे यहाँ पे मिनट से आवर में ले लिया. तो 124 मिनट मेक्स 2 आवर 4 मिनट्स. तो यहाँ क्या लिखेंगे अब इसको? ये तो 22 एज इट इज सेकेंड, अभी हो जाएगा 4 मिनट्स एंड 2 आवर यहाँ आगे आ गया, तो 84. सो दिस टोटल विच इज 82, 122, 142 is actually the time 84. total time is 84:04:22. तो एवरेज लेते हैं. A mean will be total upon 7, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है ना, तो डिवाइड बाय 7. सो दिस कम्स आउट टू बी 12. अब 4 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, ये तो सीधा 12 7 84 हो गया. 4 तो डिविजिबल है नहीं 7 से, तो व्हाट वी डू इज वो 4 मिनट को कैरी कर देते हैं. 4 मिनट मेक्स 240 सेकेंड प्लस 22 सेकेंड तो है, तो दैट मेक्स 262 सेकेंड. अब 262 को डिवाइड बाय 7 करिए. डिवाइडिंग 262 बाय 7 यू गेट, यहाँ तो 0 0 हो गया क्योंकि ये तो कैरी नहीं हो रहा है, तो 0 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी 37 अप्रॉक्सीमेटली. देखो अप्रॉक्सीमेट है ये. क्लियर अबाउट दिस कैलकुलेशन? ओके, सो व्हाट वी गेट इज, इन सब का एवरेज क्या है? 12 o'clock 0 मिनट एंड 37 सेकेंड्स. अब ये हमारा मीन वैल्यू आ गया. मीन में से हर एक में एब्सोल्यूट और एरर ढूंढना है. चलो अभी मैं इसको निकाल के एब्सोल्यूट एरर ढूंढना शुरू करते हैं.
एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन माइनस द मीन वैल्यू, ऑब्जर्वेशन माइनस द मीन वैल्यू। पहला ऑब्जर्वेशन 12,00,05 है और मीन वैल्यू क्या है 12,00,37। माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है ये स्मॉलर टाइम है बिगर टाइम है तो नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आएगा, ये दोनों तो जीरो, दिस विल बी -32 सेकेंड। सो पहले वाले में एब्सोल्यूट एरर कितना, पहला ऑब्जर्वेशन -32 सेकेंड। सिमिलरली दूसरे में देखें तो 12,01,15। अब यहां क्या करेंगे, तो 15 स्मॉलर देन 37, तो आगे से 1 मिनट उधार ली एंड 68 हो गया, तो टोटल 75 हो गया। तो 75 माइनस 37 38। ऑब्वियस है ये टाइम एवरेज से बड़ा है इससे पॉजिटिव आएगा 38 सेकेंड। सिमिलरली थर्ड वन अराउंड 5908 तो उसमें आएगा -89 सेकेंड। फोर्थ में आएगा +73 सेकेंड। फिफ्थ में आएगा -82 सेकेंड। सैटरडे को आएगा +53 सेकेंड। सेम मेथड यू अप्लाई +42 सेकेंड। ये सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, सॉरी एब्सोल्यूट एरर्स हो गए हर एक ऑब्जर्वेशन में। अब इन सब का अगर टोटल मांगे तो जीरो के नजदीक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंडेड वैल्यू लिया है, ये जीरो के नजदीक आना चाहिए। यू विल फाइंड दैट दिस टोटल कम आउट टू बी जीरो। पर फॉर टेकिंग मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, मीन का एरर लेना हो तो क्या करने का, सॉरी एरर का मीन लेना हो तो क्या करने का, इन सब की मॉड वैल्यूज नेगेटिव नॉट टू बी कंसिडर्ड, सिंपल एडिशन ऑफ द नंबर्स दैट कम्स आउट टू बी 409 सेकेंड। मॉड वैल्यू का एडिशन लेंगे तो 409 सेकेंड आएगा। 409 डिवाइड बाय 7 कम्स आउट टू बी 58.5 सेकेंड। अब 0.5 था नहीं लगता है, इसको 59 सेकेंड कर देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एरर आया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल ऑफ देम। तो अब इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन को क्या लिखेंगे, इस घड़ी के बारे में, क्लॉक 1 के बारे में, राइट 12,00,37 ये एवरेज वैल्यू हो गया, ±59 सेकेंड, ±59 सेकेंड की एरर है उसमें। ओके, ये हो गया पहली घड़ी के लिए, फर्स्ट क्लॉक। नाउ लेट्स गो ऑन फॉर द क्लॉक नंबर 2। क्लॉक नंबर 2 के लिए सिमिलरली ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, वो तो आपको दिया हुआ है नोटबुक क्वेश्चन में, उसका टोटल मैंने मारा। फिर से इसको कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में, पहले 178 को लेते हैं, तो 178 क्या बनेगा, विल बी 120 + 58 यानी कि 2 मिनट 58 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 58 और 2 आगे आ जाएगा, वो 105 मिनट हुई। अब बारी है मिनट की, 105 मिनट्स विल बी 60 + 45 यानी कि 1 आवर 45 मिनट्स। तो दिस विल बी 45 मिनट्स एंड आगे 1 आवर ऐड हो गया तो 71:45। ये हो गया टोटल इन प्रॉपर फॉर्मेट। ये टोटल बराबर है, गलत नहीं है, पर इसको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा। तो मीन वैल्यू क्या आएगा आप देखते हैं, मीन वैल्यू विल बी 71, टोटल को डिवाइड बाय 7 करते हैं, 7 ऑब्जर्वेशन है इसलिए, एंड दिस कम्स आउट टू बी, फिर से एक बार 71/7 यानी 10 हुआ, 1 आवर बढ़ा तो 16 ऐड कर देते हैं, टोटल 105। अब 105 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो वो एग्जैक्टली 15 आ जाएगा। एक मिनट, 71 45 58 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं, तो पहला तो 10 हो गया। अब यहाँ से एक 1 आवर बचा, वो 1 आवर यहाँ जाएगा तो 60 प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 105 58। तो 105 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हम लोग 15। अब ये तो एग्जैक्ट सेट हो गया, तो 58 को डायरेक्टली 7 से डिवाइड करें तो दैट विल कम आउट टू बी 7 8 56, तो उसके नजदीक में आ गया राउंडेड वैल्यू 10 15 0। तो ये हो गया एवरेज टाइम ऑफ दिस ऑल। ओके, होप सो यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग। सेम टू सेम मेथड। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू मिल गया तो एब्सोल्यूट एरर ढूंढते हर एक में। पहला ऑब्जर्वेशन 10 15 06 10 15 06
एंड मीन वैल्यू 10, 15, 08 माइनस का है, तो ये तो क्लियरली 2 सेकेंड का नेगेटिव, -02 सेकेंड। सेकेंड वाला 10, 14, 59, ऐसे माइनस करें तो 1 सेकेंड ऐड करोगे तो ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा। फिर से एक बार, अब यहाँ की 1 सेकेंड और 8 यहाँ की, टोटल 9 सेकेंड हुआ। ये हो गया ना, 1 सेकेंड 15 तक आया, फिर बाद में 8, टोटल 9 सेकेंड का गैप हो गया दोनों के बीच में, एंड नेगेटिव। जहां पे यूनिट सी इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैलकुलेट ऑलवेज सबट्रैक्ट एंड प्लस करो, हाँ वेयरएवर यू कैन डू ओरली गो अहेड। यहाँ जैसे देखा ना 1 सेकेंड है 15 पे पहुंचा 1 सेकेंड, और 8 सेकेंड यहाँ की 15 की, टोटल 9 सेकेंड का गैप हो गया। थर्ड में वैसे ही देखे तो +10 सेकेंड आता है, फोर्थ में -01 सेकेंड आता है, सॉरी -01 सेकेंड, फिर फिफ्थ में -15 सेकेंड, सिक्स में +16 सेकेंड, 03 सेकेंड। तो ये हो गए सारे वैल्यूज एब्सोल्यूट एरर के इन सेकेंड क्लॉक। अब इनका टोटल मारेंगे तो कम वेरी नियर टू 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी राउंडेड वैल्यू है, इससे एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगा। नाउ वी वांट टू टेक एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एवरेज लेने के इसको टोटल मारना पड़ेगा, मॉड वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग द नेगेटिव साइन, जस्ट सिंपली ऐड करना है। तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 56 सेकेंड। 56 डिवाइड बाय 7 विल कम आउट टू बी 7 8 56, तो 8 सेकेंड हो गया। यानी यहाँ पे एरर कितना मिला, 8 सेकेंड का है। तो टाइम यहाँ पे क्या रखेंगे घड़ी का, 10, 15, 08 एक्चुअल टाइम प्लस माइनस 8 सेकेंड की एरर है इसमें। तो फर्स्ट क्लॉक के लिए ये आया, सेकेंड क्लॉक के लिए ये टाइम आया। घड़ी कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होगी, तो हम बोलेंगे सर ये 12 के नजदीक में इसलिए ये एक्यूरेट, ये 12 से दूर है तो ये नॉट एक्यूरेट। नहीं, द टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द एरर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेसी। तो यहाँ पे देखो तो एरर सिर्फ 8 सेकेंड की है, एंड यहाँ पे एरर 59 सेकेंड की है। विच वन इज स्मॉलर? ऑब्वियसली यू कैन से क्लॉक हैज स्मॉलर एरर, देयरफॉर मोर एक्यूरेसी। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या लिखते हैं लास्ट में, एज क्लॉक 2 हैज लीस्ट एरर, therefore clock 2 is more accurate and therefore preferable। फिर से एक बार याद रखें, ये भले 10 बताता है, 12 के बजे 10 बजे बताता है, 12 के साथ में ही ऑलमोस्ट दिस शुड बी नियरर। नहीं, ये तो टाइम वी कैन एडजस्ट बाय एडजस्टिंग द हैंड्स, मिनट एंड सेकंड हैंड, मिनट आवर एंड मिनट एंड सेकंड हैंड, टाइम वी कैन एडजस्ट। इट इज द एक्यूरेसी विच इज गिवन बाय द एरर। इससे एरर जिसका कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो टू चेक द एक्यूरेसी, चेक द एरर, कंपेयर द एरर, जिसका एरर लीस्ट उसकी एक्यूरेसी ज्यादा। तो ये हो गया पूरा वर्कआउट सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2.6 का। इफ एनी डाउट जस्ट गिव मी मैसेज। सो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 2.6 लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा हैवी भी हो गया, पर क्या करें, दिस इज द सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। इट मे हैपन दैट इट मे अपीयर इन द स्कूल एग्जाम। 11th के एग्जाम स्कूल वाले लेते हैं, इसलिए it can appear in the school exam. No doubt it's a good sum. You can get a grip on calculating the time also. अब ये तो बात हुई कि when you are given a set of observations, हमने जो अभी तक पढ़ा वो कैसा था, to estimate the random error what we do is we are given a set of observations A1, A2, A3 and so on AN. फिर हम क्या करते हैं, we find out the mean of all, mean ढूंढते हैं, we find out mean value ढूंढ लिया, फिर एब्सोल्यूट एरर ढूंढते हैं हर एक में, AI minus A mean। ith ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो A1 minus A mean, सेकंड में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो A2 minus A mean एंड सो ऑन। हर एक में एब्सोल्यूट एरर ढूंढते हैं। देन व्हाट वी डू इज वी गो फॉर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एंड फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन एज A mean प्लस माइनस डेल्टा A mean। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जो हमने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए थे उसका मीन वैल्यू, और उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है वो मीन वैल्यू। तो दिस इंडिकेट्स द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बराबर है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ए मीन इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीज ऑल, एंड डेल्टा ए मीन इसमें कितना एरर है मेजरमेंट लो। इसके बाद हमने दो स्टेप और लिए थे, फाइंडिंग द रिलेटिव एरर डेल ए, दैट इज डेल्टा ए मीन एरर अपॉन ऑब्जर्व एक्चुअल वैल्यू। फिर परसेंटेज एरर लिया विच इज डेल ए इंटू 100 परसेंटेज में। ये हमने लिया जब सेट ऑब्जर्वेशन लिया, तो वी फॉलो दीज स्टेप्स।
at times you are given this value directly, single observation, rather than giving a set of observations you are given this value directly. ऐसे केस में बोला परसेंटेज एरर ढूंढना तो खाली 2 स्टेप ही रहते हैं हमारे. इन केस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी यू आर गिवन a प्लस माइनस डेल्टा ए. जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया तो मतलब क्या, क्वांटिटी का यह रिप्रेजेंटेशन मींस दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन दैट एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर. तो ये आपको डायरेक्टली दे दिया. सिंगल रीडिंग हो तो फिर ये दिया होगा. अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल, गेट दिस ऑब्जर्वेशन एंड देन relative error, percentage error. If you are given a single observation, then it will be given like this. In this case, relative error daily will be given as डायरेक्टली आ जाएगा. आपका एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली आ गया. एंड फिर परसेंटेज एरर के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. बस इतना सिंपल हो जाता है अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हो तो. अगर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन दिया तो आपको इतने स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है. ऑब्वियस है, सबका मीन लिया है वो ये रिप्रेजेंट करता है, एंड सब में एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लिया वो ये रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया तो गो बाय दिस वे. चलो एक सैंपल ले लेते हैं. फॉर अ स्फीयर, radius is measured as 10 plus minus 1 centimeter. Find percentage error in measurement of radius. ऐसा क्वेश्चन है. स्वीट एंड सिंपल. फॉर अ स्फीयर रेडियस. अब तुम सोचोगे मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, नहीं, डायरेक्टली आपको ये दे दिया. तो फिर इसमें फर्स्ट यू गेट डेल ए डेल आर, सॉरी क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर. अब डेल्टा आर कौन है, एब्सोल्यूट एरर, एंड एक्चुअल वैल्यू इज आर. तो व्हाट यू गेट इज 1/10 एंड दैट विल बी 0.1. ये रिलेटिव एरर हो गई. कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर इन आर विल बी इक्वल टू डेल आर प्लस सॉरी इनटू 100 एंड दैट विल बी 10%. सो हियर व्हाट इट इंडिकेट्स के रेडियस का मेजरमेंट 10 है, उसमें 1 की एरर है, दैट मींस 1 इज 10% ऑफ दिस 10. एरर कितनी है, दिस एरर इज 10% ऑफ दिस एक्चुअल वैल्यू. दैट्स व्हाट इट मींस. ये एरर क्या बताता है, इसको परसेंटेज में ले आओ, this much percent del is this much percentage of a mean. That's what it indicates. तो अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हो तो यू सॉल्व इट बाय दिस वे. ओके, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड इन केस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन. अब ये मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया हुआ है, इतना पार्ट कॉपी आउट कर लेना, राइट साइड वाला पार्ट कॉपी कर लेना. होप यू हैव कॉपीड दैट पार्ट ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन. उसमें एक सम किया था हमने रेडियस ऑफ स्फीयर का. एक और सम अभी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट दिस क्लियर सिंगल ऑब्जर्वेशन का. अब ये सिंगल ऑब्जर्वेशन देखा हमने. सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन एरर बेसिकली क्या चीज है पहले समझ लेते हैं. सी सपोज वी आर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. चलो हमने सिलेंडर लिया हुआ है तो सिलेंडर की डेंसिटी के लिए सिंबल रो यूज कर रहे हैं. दिस इज RHO, रो फॉर डेंसिटी. ये सिंबल रो यूज किया हुआ है डेंसिटी के लिए. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अब सिलेंडर के लिए मेजर कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा वॉल्यूम उसका. यानी व्हाइल मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर वी कैन नॉट मेजर डेंसिटी डायरेक्टली, सो वी मेजर मास यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर. हाइट ले लेंगे वर्नियर कैलिपर से, रेडियस ले लेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू या फिर वर्नियर कैलिपर से. तो वी हैव टू मेजर 3 क्वांटिटीज M, R एंड H. ये मेजर करके बाद में डेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे. नाउ इफ सपोज व्हाइल मेजरिंग द मास यू गेट सम एरर, डेल टाइम जितनी एरर आई मास में. सपोज हाइट मेजर करते थे, एरर आई h प्लस माइनस डेल्टा h. डेल्टा h इज एरर इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. रेडियस में एरर आई r प्लस माइनस डेल्टा. डेल्टा इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस. तो व्हाइल मेजरिंग डेंसिटी अगर कोई क्वांटिटी में एरर है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट आल्सो. इट विल अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट आल्सो. तो व्हेन अ फार्मूला इन्वॉल्व्स मोर देन वन क्वांटिटीज, तो किसी एक क्वांटिटी में अगर एरर होता है, एक या दो या और क्वांटिटीज में अगर एरर होता है, तो दैट एरर इन द क्वांटिटीज कैन अफेक्ट द रिजल्ट आल्सो. तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके एरर्स का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ एरर्स
of the quantities, individual errors, how does it affect the calculation of the entire quantity. Now ये सिचुएशन कैसा हो गया, सपोज वी आर टीम ऑफ 6 पर्सन. अब टीम हमको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एज अ टीम वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट, पर अगर टीम मेंबर में कोई गलतियां करने लगे तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. बराबर है. तो इंडिविजुअल गलतियों के कारण टीम पे क्या परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आती है. कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर के कारण रिजल्टेंट क्वांटिटी में क्या, रिजल्ट में क्या एरर आएगा वो हमें नेक्स्ट पढ़ना है. अब और फॉर्मूला में क्या हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, या एडिशन, या सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली होते हैं. तो विल बी स्टडीइंग ईच एंड एवरी ऑपरेशन सेपरेटली. वी विल सी हाउ इट अफेक्ट्स द फाइनल रिजल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.